Continuing with worksheet 4. Red is my favorite color. Which is yours? I can play tennis or swim at the gym. What do you think is better? Now, say whether the underlined words are used as interrogative pronouns or adjectives. तो आपको पता करना है कि ये pronoun है या adjective है. तो आप इसकी पहचान ये है कि जहाँ पर whose, which, who, where के बाद कोई noun आए, जैसे shirt या book, तो जो है वो adjective होगा. और अगर is आ गया या नहीं आ रहा है कोई नाउन, तो वो जो है प्रोनाउन हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अब जैसे हुज शर्ट, तो यहाँ हुज जो है एडजेक्टिव के फॉर्म में है. हुज शर्ट इज़ दिस, तो यहाँ हुज इज़ एडजेक्टिव. विच बुक इज़ बेटर, ये भी एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि शर्ट और बुक नाउन्स हैं. हु इज़ मिस्टर बीन, तो ये प्रोनाउन है क्योंकि हु के बाद इज़ आया है. आई डोंट हैव अ कंपस, हुज कैन आई बोरो. तो यहाँ पर भी कंपस के लिए आया है, तो ये यहाँ पर ये भी एक एडजेक्टिव है. वेयर इज़ मॉन्ट कार्लो, दिस इज़ अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ऑलराइट, तो यहाँ कंपस के लिए आया है हुज कैन आई बोरो, तो यहाँ पर ये इट इज़ एन एडजेक्टिव. तो इसको आप लिख लीजिएगा. Now make questions using interrogative pronouns based on the statement given. Like, he is the new defense minister. Who is the new defense minister? Question mark. The boy sitting next to Fahad is Sameer. Who is the boy sitting next to Fahad? She prefers tea to coffee. What does she prefer? यहाँ पे prefer में s नहीं लगेगा क्योंकि do का जो past tense है वो does होता है, जो आप already उसको use कर चुके हैं. तो अब यहाँ पे प्रेफर को प्रेफर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रेफर लिखेंगे. तो वर्ब जो है उसमें आप एस या ईडी यूज़ नहीं करते अगर डू का डज हो जाता है. तो आई वॉन्ट टू डू माई होमवर्क. व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू? ही वॉन्ट्स टू मीट द डायरेक्टर. व्हाट डज ही वॉन्ट टू डू? यू कैन राइट टू डू, और नहीं भी तो चलेगा. अब ये देखिए, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स बाय यूजिंग द क्लूज गिवन. तो ऊपर से अक्रॉस है, लेफ़्ट टू राइट. नैरो एंड लॉन्ग ओपनिंग ऑफ 4 लेटर्स, देखिए, दैट इज़ कॉल्ड अ स्लिट, SLIT. टू, अ पर्सन हु राइट्स बुक और स्टोरीज, 6 लेटर्स. टू देखिए, ऑथर, AUTHER. देन अ लार्ज रिवर ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन अ माउंटेन. तो फोर्थ देखिए, ग्लेशियर, GLACIER. Then 6 is a period of 10 years. तो 6 देख लीजिए, 6 is decade, DECADE. Then 8, soft thick hair of sheep. तो 8 हो जाएगा wool, WOOL. 9, not in danger. 9 देखिए, where is 9? When you are not in danger, then it will be known as safe, SAFE. Now we come from up to down. 1, a high loud cry. तो 1 जो है that is shriek, SHRIEK. Special clothes that everybody in the same job or school wears. 7 letters. यूनिफॉर्म है ये, देखिए कहाँ पर है, नंबर 3 पे. तो 3 पे देखो, where is यूनिफॉर्म. ये 3 देखिए, UNIFORM. An African animal like a big black monkey. 4th वाला that is gorilla, GORILLA. Someone who is not courageous, 6 letters. 5 वाला देखिए, that is number 5. 5 is coward, COWARD. How long it is from one place to another? 7. 7 is distance, DISTANCE. Then to raise, 10, that is elevate, ELEVATE.
So this is the crossword puzzle. Now we come to there are two different ways in which you can spend time with your family. One is sitting at home just watching TV. Another is going for, say, mountaineering or trekking. So which one do you prefer? I think the second one will always be preferable once in a while, because you get a lot of adventure. You eat outside in the form of a picnic, and you feel very active, and you get a lot of fresh air, and you feel very healthy also. So you can write something in your own words. Now, how do we write an informal letter? Informal letter is some letter which you write to your friend or relative. किसी दोस्त को या रिश्तेदार को आप जब लिखते हैं कोई, तो वो इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो होता है. तो आपको क्या करना है? कॉलम ए कंटेन्स पार्ट्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. मैच ईच विद इट्स पर्पस गिवन इन कॉलम बी. तो डियर रिद्धिमा किसके लिए है? टू ओपन द लेटर. देन योर्स लविंगली इज टू बिफोर साइनिंग द लेटर इन द एंड. Why don't you? To make a suggestion. Could you do me a favor? To ask for help. I am happy to know that. To introduce a new subject. I am very sorry about. To apologize for a mistake. Thank you for the lovely letter. To thank the person for writing. Write soon. To finish the letter. And here you have written the date, which is there to show when the letter has been written, and you have written your address also to show the place from where the letter has been written. So now imagine you have a friend called Riddhima who's using the hints in the table given on the previous page. Write an informal letter to her. You can write about anything you want to share with a friend. कुछ भी लिख सकते हैं आप, और ये जो हिंट्स दी हुई थी आपको, उसके ऊपर बेस करके आप लिखिए. तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे. कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका एड्रेस है वो लिख सकते हैं. हमने यहाँ पे लिख दिया 19 फ्रेंड्स कॉलोनी लखनऊ 226009. दैट इज़ द पिन कोड. देन वी राइट द डेट, दैट इज से 12th January 2020. Now you start the letter by addressing your friend like, Dear Riddhima, thank you for the lovely letter. I am glad to know that you have passed and have stood first in your class. Why don't you join your favorite cooking classes this summer? I am very sorry to know about the illness of your grandmother. Or you can say that I am sorry that I could not write to you earlier. You can write anything. In the first case, you are asking, you are expressing your sorrow for due to the illness of her grandmother. But in the second case, you are asking sorry because you haven't written to her earlier. Whatever you want, you can write. And then again you can add, I hope she gets well soon. Could you do me a favor? Please send the mobile number of our friend Alka, or any favor which you want. Give my greetings to your parents. Write soon. Your friend, whatever your name is, you can write it. So that's how you write an informal letter. Now we come to worksheet 5, Jaldi's gift. It's related to that. Now comprehension is, the information below has been taken from a tourist brochure. Brochure होता है एक file. Read it carefully and answer the questions that follow. So here you are seeing some macaws, parrots, तोते हैं, रंग बिरंगे तोते. ये black and white photograph है, इसलिए इसमें आपको colors नहीं नज़र आ रहे हैं इनके. ये करारा नेशनल पार्क है जो कोस्टा रिका, एक छोटा सा आइलैंड टाउन है पैसिफिक के पास. तो वहाँ पर एक नेशन है ये कोस्टा रिका. तो वहाँ पे टूरिस्ट इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उसमें एक है करारा नेशनल पार्क. टेक अ ट्रैक थ्रू करारा नेशनल पार्क, सिचुएटेड इन द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन अ ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट एंड अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ट्रांजिशन मैंने जो बदलता है एरिया, वहाँ पर ये एक करारा नेशनल पार्क है. यहाँ पे लोग पैदल चलना जाना, अपना सामान लाद के पीठ पे, उसको ट्रैकिंग बोलते हैं, जाते हैं. तो ये ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जहाँ बारिश कम होती है, और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ बहुत बारिश होती है, उसके बीच में ये नेशनल पार्क है. द स्पेसिफिक लोकेशन अलाउस इट टू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ स्कारलेट मैकॉस. तो यहाँ पर क्या है,
जो बची खुची जो जंगली जो एक पॉपुलेशन है किसकी, स्कारलेट रंग होता है, बहुत ब्राउनिश रेड, मैकॉस होते हैं एक तरह के पैरेट्स, तो वहाँ ये देखने को मिलते हैं। फिर आप जाइए इराजू वॉल्केनो होता है जिसमें से लावा निकलता रहता है, तो ये भी सारे ये चीज़ें वहीं पे हैं कोस्टा रिका में। पास टू द कंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन्स टू रीच दिस वॉल्केनो, तो आपको सबसे ज़्यादा जो खेती बाड़ी का रीजन है उसको क्रॉस करके आप जाएंगे तो आपको ये जो ज्वालामुखी है वो दिखेगा। एक्सप्लोर द 4 क्रेटर्स एट द समिट ऑफ कोस्टा रिका's हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो द इराजू वॉल्केनो, तो सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है वो इराजू वॉल्केनो है, और उसमें 4 क्रेटर्स हैं उसके, जहाँ पर वो है समिट पे, जहाँ पे उसकी ऊंचाई जो है उसके पास में क्रेटर होते हैं जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, जैसे ये एक क्रेटर है तो इनमें पानी भरा रहता है, तो उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैनुएल एंटोनियो नेशनल पार्क, तो मैनुएल एंटोनियो नेशनल पार्क इज़ कॉल्ड द ज्वेल ऑफ द नेशनल पार्क सिस्टम, बहुत बढ़िया वाला है उसका एक उसका जो है मणि माना जाता है, जवाहर माना जाता है। ये कहाँ पर है, सेट ऑन द पैसिफिक कोस्ट, प्रशांत महासागर के तट पर। इट्स वन ऑफ कोस्टा रिका's मोस्ट पॉपुलर पार्क्स। फॉलो अ प्रोफेशनल गाइड और अ नेचुरलिस्ट टू सी वाइट फेस्ड monkeys, sloths, ant eaters, tropical birds and more here। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे नेशनल पार्क में तो ये जो है आपको किसी प्रोफेशनल गाइड को जो जानकार है या कोई एक पर्यावरणविद है, नेचुरलिस्ट है, तो उसके साथ आप जाइए तो आपको सफ़ेद मुँह वाले मंकीज़, स्लॉथ भी एक बड़े स्लो किस्म के एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े जैसे गिलहरियों जैसे, तो वो दिखेंगे। एंट ईटर्स भी एक तरह का छिपकली जैसा एक होता है, और कुछ ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, मैनुएल एंटोनियो में ये देखिए सफ़ेद मुँह वाले मंकीज़ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप आते हैं वाइट वाटर राफ्टिंग में। राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक नाव होती है उसमें हवा भर दी जाती है, फिर उसमें आप अपने चप्पू जो होते हैं ना अपने, उनको लेकर आप उसमें जाते हैं नदी के तेज़ बहाव में, तो उसको राफ्टिंग बोलते हैं। हमारे यहाँ पे भी कभी आप जाएं कुल्लू मनाली वगैरह तो वहाँ पे जो सतलज नदी है उसमें आपको राफ्टिंग करते हुए लोग, या नेपाल जाएं तो वहाँ पर बहुत राफ्टिंग होती है जहाँ तेज़ बहाव वाली नदियाँ। राफ्ट द कौन सा, सेवग्रे रिवर, तो ये एक नदी है वहाँ पे सेवग्रे रिवर विच डिसेंड्स, तो नीचे उतरती है फ्रॉम द माउंटेन्स एंड हेड टूवर्ड्स द पैसिफिक, तो ये नीचे उतर के कहाँ जाती है पहाड़ों से, ये जाती है प्रशांत महासागर में। Along the way there are many swimming holes, तो there are small holes where you can swim, जहाँ पे पानी तेज़ नहीं बह रहा है, और there are swimming holes, then waterfalls, झरने भी हैं, where you can spot a large variety of birds and more, जहाँ पे आप कई तरह की चिड़ियाँ दिखाई देंगी। Experienced paddlers can also raft on the Naranjo River for more adrenaline rapids, तो अगर आपको ज़्यादा आपको अनुभव है इसका राफ्टिंग का, जो करते हैं उनको पैडलर्स बोलते हैं, तो आप नारंजो रिवर में जा सकते हैं पैडलिंग करने या राफ्टिंग करने। फॉर मोर एड्रेनालिन रैपिड्स का मतलब है जब हम बहुत ही कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो एक्साइट करता है, तो हमारे जो ग्लैंड्स होती है ना एड्रेनालिन, वो एक तरह का एड्रिनल ग्लैंड्स जो एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करती हैं एड्रेनालिन, तो वो अगर आप एक्साइटेड होंगे तो वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। रैपिड्स माने बहुत तेज़ से बहने वाला, आने वाला, तो अगर आपको ज़्यादा, यहाँ पे इसका मतलब है एडवेंचर, तो आपको ज़्यादा एडवेंचर चाहिए तो आप नारंजो रिवर पे जाइए राफ्टिंग करने। अब हम आते हैं द बटरफ्लाई गार्डन या फ्रॉग पॉन्ड एंड कैसम। The excursion begins with a visit to the butterfly garden followed by the educational hall to learn more about scorpions, tarantulas and more। तो excursion माने जो आपका ये यात्रा जो होगी वो कैसे स्टार्ट होगी बटरफ्लाई गार्डन में जाके, कि आप जो है एजुकेशनल हॉल में जाइए, वहाँ पे आपको स्कॉर्पियंस, बिच्छू, टेरेंटुलास, बड़ी बड़ी बालों वाली मकड़ियाँ होती हैं उनको टेरेंटुलास बोलते हैं, उनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू द मॉन्टवर्ड फ्रॉग पॉन्ड, फिर आप जाइए मॉन्टवर्ड फ्रॉग पॉन्ड में,
तो कलरफुल स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स मिलेंगी आपको, इंक्लूडिंग द अनयूजुअल ब्लू जीन्स फ्रॉग, एक ब्लू जीन्स फ्रॉग. Finally, at the chasm. Chasm is scoop of artisans of Santa Elena, Monteverde. You can check out local handicrafts. तो what is chasm? यहाँ पर जो लोग अपने हाथों से जो चीज़ें बनाते हैं आप उनको देख सकते हैं. लास्ट में आता है पैक्यूएर वाइट वाटर राफ्टिंग. On this memorable adventure, tackle the exhilarating class 3 and 4 rapids of the Pacquier River. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपको एक्सिलरेटिंग मीन्स जो बहुत ही आपको खुश कर देंगे. तो क्लास 3 और क्लास 4 टाइप के रैपिड्स होता है तेज़ी से बहना. रैपिड मीन्स वेरी क्विक एंड फास्ट. तो उसके रैपिड्स को कहेंगे तेज़ धारा. किसकी? पैक्यूएर रिवर की. तो आप वहाँ पे जो है राफ्टिंग कर सकते हैं. और बास्क इन द अमेजिंग कलरफुल फॉलिएज. बास्क मीन्स उसकी छाँव में आप मज़े ले सकते हैं. किसकी? जो बहुत ही रंग बिरंगे पत्ते हैं यहाँ आसपास के जंगलों के. while descending to the Caribbean lowlands, जबकि आप नीचे की तरफ कैरिबियन आइलैंड्स की तरफ जा रहे होंगे. ये जो है कैरिबियन आइलैंड्स आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है. Halfway through you can also stop for a buffet style lunch at one of the peaceful beaches. buffet होता है जहाँ पे आप छोटा मोटा लंच खुले में जो खाते हैं उसको बोलते हैं. तो रास्ते में ही आपको बहुत सारी जो तट है वहाँ पे समंदर के, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ आप अपना लंच ले सकते हैं. तो अब इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए. नेम द बर्ड यू कैन वॉच इन करारा नेशनल पार्क टूर, दैट इज स्कारलेट मैकॉस विच इज़ अ लार्ज पैरेट. हाउ मैनी क्रेटर्स कैन यू सी ऑन द इराज़ू वोल्केनो? देयर आर 4. So, where do you need to go if you want to learn more about scorpions and tarantula spiders? To the butterfly garden. Now read the information about the 2 white water rafting tour opportunities. Say whether the following information is true or false. So Pacquier River has class 3 and 4 rapids. True. The Savagre River falls into the Pacific Ocean. True. One can have lunch on the Pacquier River rafting tour. True. There are many birds one can see on Pacquier water rafting tour. So here we just confirm it. So Pacquier water tour में variety of birds you can see where on the Savagre River. Here they are talking about which river? It is the Pacquier water. So this is false. Rafting on the Naranjo River is recommended for beginners. False. It is for the experienced ones. Where is the Manuel Antonio National Park located? So you'll start with the answer. Manuel Antonio Park is located on the Pacific coast in Costa Rica. According to the brochure, who should accompany you during your trek in the Manuel Antonio National Park? According to the brochure, a professional guide. Here you will write a as a small letter. Or a naturalist, or you can just start at a professional guide or a naturalist should accompany us during our trek in the Manuel Antonio National Park. Now here are some words related to astronomy. Astronomy is the study of outer space, the celestial bodies. जो आकाशीय जितने भी रचनाएं हैं उनकी स्टडीज़ को, जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, मून है, सन है, स्टार्स हैं, उनके बारे में. एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद देम, और उनके साथ जो भी जुड़े हुए हैं. रीड द डेफिनेशंस ऑफ अ फ्यू एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टर्म्स. तो एक है प्लानिटेरियम, विच इज़ अ बिल्डिंग विद अ डोम्ड सीलिंग. यहाँ पे है ना हमारा एक प्लानिटेरियम, तो आपको दिखाया भी गया है कई बार. उसमें गोल उसकी छत होती है जिसमें आपको स्टार्स, प्लैनेट्स और दूसरे जो आकाशीय जो रचनाएं हैं उनको मॉडल किया जाता है, दिखाया जाता है प्रोजेक्टर की मदद से. व्हाट इज़ एन एक्सिस? एन इमेजिनरी लाइन विच passes through a body on which the body rotates. The earth also rotates on an axis which is tilted by 23.5 degrees. 90 डिग्री ना होके 23.5 डिग्री होता है जो टिल्टेड रहती है अर्थ की एक्सिस, जो अर्थ में नॉर्थ और साउथ पॉइंट को जोड़ती है, और उसी पॉइंट पे वो बॉडी ये रोटेट करती है.
रोटेशन क्या होता है? बॉडी सर्कुलर मूवमेंट ऑन एन एक्सिस रनिंग थ्रू इट। तो रोटेशन जैसे आपके लट्टू घूमता है अपनी एक्सिस पे, वैसे ही अर्थ भी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और एंटी क्लॉकवाइज होता है राइट टू लेफ़्ट। और कंप्लीट्स ए वन रोटेशन इन 24 आवर्स, यानी ये 24 घंटे एक दिन में ये एक पूरा चक्कर घूम लेती है धरती। रिवॉल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ वन बॉडी अराउंड अनदर ऑन एन ऑर्बिट, एक पूरे सर्कुलर घुमावदार चक्कर में घूमना। जैसे एथलीट्स जो हैं वो चक्कर लगा के घूमते हैं, तो रिवॉल्यूशन जैसे अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ। द अर्थ रिवॉल्व्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन, यहाँ पर भी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अ लिटिल मोर देन 365 डेज। तो सन का पूरा एक चक्कर अर्थ 365 डेज में लगाती है। इट्स नॉट 365 एग्जैक्टली, इट इज 365 1/4। होराइजन, द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई अपेयर्स टू मीट द लैंड। तो कभी आप दूर देखेंगे तो आपको लगेगा धरती और आकाश मिल रहे हैं, उसको होराइजन क्षितिज बोलते हैं। AM is the short form of the Latin ante meridiem. It means before the sun crosses the meridian, before noon, right? So ante meridian, AM बोलते हैं ना हम, that is actually ante meridiem. तो before noon मतलब दोपहर से पहले, 12 बजे से पहले। PM is after 12 o'clock in the afternoon. The short form of the Latin post meridiem, MERIDIEM. It means after the sun crosses the meridian, that is afternoon, 12 बजे के बाद। Star is a large self-luminous sphere of gas. What is a star? बहुत बड़ा गैस का बना हुआ, अपने आप जलने वाला, अपने आप रोशनी देने वाला जो एक स्फीयर होता है, गोला, उसको स्टार बोलते हैं। जैसे सन इज़ अ स्टार, अ वेरी बिग स्टार, उसकी अपनी रोशनी है। बाकी जो चारों तरफ उसके घूमते हैं जो आपके 8 प्लैनेट्स, वो सब जो हैं उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। मून की भी अपनी रोशनी नहीं है, अर्थ की भी नहीं है, सबको सूरज से रोशनी मिलती है। तो वो सब प्लैनेट्स हैं जो चमकते हैं, वो सारे स्टार्स हैं। छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ज़्यादा दूर हैं। सन क्योंकि अपेक्षाकृत पास है, इसलिए वो हमको बड़ा दिखता है। Then planets, any of the 8 bodies that revolve around the sun as a group, the sun and its planets are known as the solar system. आप जानते हैं 8 कौन से हैं? मार्स, वीनस, then then Earth, then we have first is not Mars, first is which is the first planet? Mars, Venus, Earth, then M again for Mercury. So the first planet actually is Mercury. Then you come to Venus, Mercury, Venus, Earth, then Mars. Then J for Jupiter, then S for Saturn, then U for Uranus, N for Neptune. Pluto previously was considered as a planet, but later on it was so small that now it is not considered as a planet. What are cardinal planets? Points. 4 main points of the compass: north, south, east and west. They are known as the cardinal points. What is a constellation? A pattern of stars forming a particular shape. It is usually named after an object, a famous person or an animal. तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, जैसे ग्रेट बियर, स्मॉल बियर एट्सेट्रा। हमारे हिंदी में भी उनको सप्तऋषि वगैरह बोलते हैं, जो 7 तारों का समूह है। तो दे आर नेम्ड आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, फेमस पर्सन और एन एनिमल. व्हाट इज अ गैलेक्सी? ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड देयर प्लैनेट्स विच टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स. सारे स्टार्स और उनके प्लैनेट्स, जैसे हमारी गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे है. द गैलेक्सी कंटेनिंग द सोलर सिस्टम, इट इज़ ऑफन विजिबल इन द नाइट स्काई एज अ फेंट बैंड ऑफ लाइट. हमारी गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे है, जिसमें क्या आता है? हमारा सोलर सिस्टम, सन एंड इट्स प्लैनेट्स.
So you have to write about the terms I already knew, new terms I have learned, and the terms I find difficult to remember. You can write it on your own and practice the difficult words. Now see what is the present perfect. Simple present perfect जो इस समय हो रहा है तो उसका होता है उसमें हैज़ प्लस हैव प्लस द वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. जो उसका लास्ट फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का, वो यूज़ किया जाता है. तो जैसे हैज़ रिटर्न, हैव कंप्लीटेड. एक है तो हैज़, एक से ज़्यादा है तो हैज़ गॉन, हैव रेड. So you have to use them, and remember that the present perfect form could be used to talk about the following: a past experience, I have tasted strawberries, ये past में हुआ था. A change, example, I have bought a new car. And continuing situation, we have lived in Bangalore for 5 years now. अभी भी ये काम हो रहा है present में. तो they are all the simple present, yeah, present perfect. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in the brackets. What has been done for you? Last year I didn't know how to play chess. Now I have learnt. Learnt. Learnt is the past participle form of learn. From my sister. It was difficult for the villagers to cross the river before, but now they have built a bridge. Built आएगा यहाँ पे, आप इसको correct कर लें. BUILT. Many celebrities have studied in this school. Dr. Das has worked in many countries. He can speak many languages. The police cannot find the prisoner anywhere. They think that he has escaped. So now you have to make sentences about these activities. In the first case, you can see a man is being rescued by the rescue team from the river. In another, the boy is kicking the football. In the third, the children are opening gift traps. In this, the rocket has left the space station. A man is diving into the pool. The child has just caught a butterfly. So you have to make these sentences. Here, the girl has just finished reading. She has just finished eating, and this boy has just finished drinking milk. So you have to make sentences. The first one has been done. The lifeguards have rescued the drowning man. Second is, the boy has kicked a football. Third, the children have opened the gift packs. D, the rocket has left the space station. E, the man has jumped into the swimming pool. Then F, the boy has caught a butterfly. The girl has eaten her food. The boy has drank the milk. So as you can see, kicked, opened, left, jumped, caught, eaten, drank. They are verbs in their past participle form. Now we come to the past perfect form, something which has already happened. Okay, so how do you use past perfect form of the verb? To refer to a time in the past and talk about an action that happened before that time. तो एक टाइम जो पास्ट में था और एक एक्शन जो उस टाइम से पहले हो गया. So when I started a time in the past, my journey, it had started to rain. The action that happened before. तो जब मैं चल पड़ा था तो उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई थी. The child refused a time in the past to eat any more food because she had eaten. क्योंकि वो खा चुकी थी इसलिए अब उसने और खाने से मना कर दिया, है ना. तो ये आपको पास्ट के एक्शंस के बारे में. तो मेक सेंटेंसेस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट देम डाउन इन द ब्लैंक्स. My family was happy because I had scored full in the English spelling test. I swam across the stream easily because I had learned to swim in my early childhood. My teacher was a little disappointed with me because I hadn't, है ना, यहाँ पे hadn't की जगह had not जो होता है वर्ड, तो उसमें आप hadn't उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. तो HAD और नॉट का N लेके फिर अपॉस्ट्रोफी लगा के T लगा देते हैं. तो माई टीचर वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद मी बिकॉज आई हैडेंट प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड माई एसे वेल. मैंने अपना ऐसे अच्छे से नहीं लिखा था. आई वोक अप लेट बिकॉज आई हैडेंट set the alarm before going to bed.
जहाँ नहीं किया था वहाँ hadn't, जहाँ कोई काम किया है तो had. Now fill in the blanks by using the correct forms of the verbs given in the brackets. My friends shared their breakfast with me because I had forgotten my snack box at home. Rima was surprised to see her dog waiting to be fed more because he had eaten his meal just an hour ago. When I reached the bus stop, I realized that I had left the front door of my house open. When I went to see my friend Seema at the hospital, the nurse told me that Seema had recovered and she had gone home. Now choose the correct option to fill in the blank in each of the following sentences. Ritvi had plucked. We had bought. When we reached, Ritvi's mother had started. We hadn't finished baking. The guests had remembered to bring chips. So these are the fill in the blanks. Now writing a formal letter. Read the jumbled information given in the grid. यहाँ पे आपको कुछ information दे रखी है और jumbled है यानी कि सही order में नहीं है. It is from a formal letter written by an archaeologist. आर्कियोलॉजिस्ट भी क्या होते हैं, जो खुदाई करके पुराने ज़माने की चीज़ों को निकालते हैं. पॉटरी हो गई, कॉइन्स हो गए या दूसरी कुछ चीज़ें हो गई, उनकी स्टडी की जाती है कौन से टाइम के हैं वो, कौन से रूलर के टाइम के हैं. अगर कॉइन्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपने सुपीरियर जो उनका बॉस है उनको ये लेटर लिख रहे हैं. नंबर देम इन द ऑर्डर दे शुड अपीयर इन द लेटर. Then imagine that you are the archaeologist's superior and write a reply to the letter in the space after the grid. तो यहाँ तो पहले इनको सही ऑर्डर में दीजिए. तो सबसे पहले तो आप जो है लिखेंगे उसका एड्रेस जिसको कि आपको लेटर लिखना है, डॉक्टर CS मिस्त्री. उसके बाद सेकंड नंबर पे डेट डालेंगे. फिर थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे आप ये डालेंगे ये जो अपना एड्रेस है जहाँ से आप लिख रहे हैं. फिर आप थर्ड नंबर पे डेट डालेंगे. और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप एड्रेस करेंगे जो है डियर सर करके. दैन फिफ्थ नंबर पे आप बताएंगे आप किसके बारे में लिख रहे हैं. सिक्स नंबर पे आप ये लिख सकते हैं आई विल शो यू द प्लेसेस इन द आर्टिकल्स फाउंड. सेवेंथ पे पीपल शोड मी देयर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स. एट नंबर पे आप ये लिख सकते हैं villagers say no outsider has ever visited this place. Then आप और information दे रहे हैं. 9 पे they say that they regularly find pieces of pottery. 10 पे I think the ruins date back to the Chola rule. And then 11 पे the cattle are led to graze here. So they will destroy the delicate stonework and clay pottery. Then 12 पे आप आइए ये I request you to visit the site. Villagers do not realize that they probably are living in a place of great historic significance. Then last में yours sincerely और फिर जो है आप अपना सिग्नेचर करेंगे लास्ट में. तो ये आप अब जो आपका सुपीरियर है जो जिसको ये लेटर मिला है वो जवाब दे रहे हैं. तो सबसे पहले आप लिखेंगे जहाँ से भेजा जा रहा है लेटर. तो वो लिख रहे हैं द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनपथ न्यू दिल्ली 110011 और डेट डालिए 1 सितंबर 2020. एंड कौन लिख रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि उनके जूनियर हैं, असिस्टेंट हैं, उनका नाम मिस्टर सुधीर रॉय मान लीजिए. 53/29 सोना विलेज महाराष्ट्र. सब्जेक्ट इज़ चोला साइट. एंड आवर एड्रेस डियर मिस्टर सुधीर, आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ योर लेटर केयरफुली. इट सीम्स you are right in recognizing the Chola site, right? Now collect the coins, pottery, etc. and barricade the area till my arrival. जब तक मैं आऊँ आप सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें, संभाल लें और बैरिकेड करा दें, मगर वहाँ पर जो है बाढ़ लगवा दें ताकि इसमें जानवर वगैरह ना जा सके. आई एम कमिंग सून. टिल देन टेक केयर. Yours sincerely and signature of the boss. So this is the workbook which you have to do for your first term. After that, try doing checkpoint yourself with the help of whoever teaches you
and you have to do here punctuation and do the test 1 also. Whatever you can do it. There are certain questions also related to your course book comprehension is there, which when you study the course book then you can do them. And then fill in the blanks and the grammar related to what you have already done. So please try to do them. Here you do the entire exercise, and if you are not able to do them, then we are going to help you. Then literature reader also has got certain questions which try doing them once it has been taught to you. So this will come in the first term. Thank you.